السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی پرانی بھولی بصری مگر حیرت انگیز کہانیاں لاتا رہوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک پرانے دور کی بات ہے جب گاؤں بڑے سادہ ہوا کرتے تھے۔ بجلی نہیں تھی، سڑکیں کچی تھیں اور رات کے وقت پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایسے ہی ایک گاؤں میں، جس کا نام اوکالاپتیر تھا، ایک انوکھا راز چھپا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے بزرگوں میں ایک بات مشہور تھی۔ کالاپتیر میں ایک عورت رہتی ہے جو ہر رات اپنی شکل بدل لیتی ہے، لیکن کسی نے اسے کھل کر بیان نہیں کیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جس نے بھی اس عورت کو رات کے وقت دیکھا تو پاگل ہو گیا، پھر گاؤں چھوڑ گیا۔ گاؤں کے لوگ ڈرتے تھے، لیکن نوجوان لڑکے ہمیشہ ہنسی میں ٹال دیتے، خاص کر راشد، جو 19 سال کا ایک خوبصورت مگر بے حد نادان لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی مونچھ نہیں تھی، بس بچپن کی معصومیت اب تک باقی تھی۔ راشد کا رنگ صاف تھا، چہرے پر جاذبیت تھی، اور وہ ہر وقت ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں چاندنی رات تھی۔ راشد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب ایک بڈھا بزرگ، جسے سب بابا نذیر کہتے تھے، ان کے قریب آیا۔ بابا نذیر گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص تھے، آنکھوں میں دھند، ہاتھوں میں لرزش مگر دماغ تیز۔ بابا نذیر نے کہا، بیٹا راشد، تم لوگ رات گئے تک باہر مت گھوما کرو، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ تمہیں معلوم ہے وہ عورت پھر سے دیکھی گئی ہے۔ راشد ہنسا، بابا کیسی عورت؟ آپ لوگ ہمیشہ پرانی کہانیاں سناتے ہو، اگر واقعی کوئی عورت رات کو شکل بدلتی ہے تو میں جا کے دیکھتا ہوں اسے۔ بابا نذیر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، بیٹا تمہیں علم نہیں، اس عورت کے بارے میں صرف یہی نہیں کہا جاتا کہ وہ شکل بدلتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی اس کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ دوبارہ خود کو پہچان نہ سکا، نہ اس کی یادداشت رہی نہ اس کی عقل۔ راشد کے دوست بھی چپ ہو گئے، مگر راشد کے اندر ایک ضد پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات وہ اس عورت کو تلاش کرے گا۔ رات گہری ہوتی گئی، چاندنی پورے گاؤں پر چھائی تھی۔ راشد اپنے کمرے سے چپکے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی اور جیب میں ماں کا دیا ہوا تعویذ۔ بابا نذیر کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، مگر جوانی کا جوش غالب تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں اس عورت کو دیکھ لوں تو سب کو بتاؤں گا کہ یہ صرف وہم ہے۔ راستے میں اسے گاؤں کا پرانا کنواں ملا۔ لوگ کہتے تھے کہ کنویں کے پاس رات کو نہ جانا، وہاں عجیب آوازیں آتی ہیں۔ راشد نے کنویں کے قریب جا کر دھیما سا پانی کا شور سنا، جیسے کوئی اندر موجود ہو۔ تبھی ایک آواز آئی، کون ہے؟ یہاں کون آیا ہے؟ راشد کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے لالٹین کو آگے کیا۔ روشنی میں اسے ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا، ایک عورت کا، مگر اس کا چہرہ صاف نہیں تھا، دھند کی طرح دھندلا، جیسے ہر پل بدل رہا ہو، کبھی جوان عورت، کبھی بڈھی، کبھی بچی۔ عورت نے سرگوشی کی، تمہیں کیوں آنا پڑا؟ لوگ کیوں سکون سے نہیں رہتے؟ راشد نے ہمت کر کے کہا، تم کون ہو اور اپنی شکل کیوں بدلتی ہو؟ عورت کی آواز تھوڑی غصے میں آ گئی، یہ تمہارا سوال نہیں، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ خود کو کھو دو گے۔ لیکن راشد نے ضد کی، نہیں، تم بتاؤ ورنہ میں گاؤں جا کے سب کو بتا دوں گا۔ تب اچانک عورت کی شکل مکمل بدل گئی۔ اس کے بال بکھر گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور اس نے چیخ کر کہا، جو سچ جانے آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ راشد پیچھے ہٹا، مگر اس کے پیر زمین میں دھنسنے لگے جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ اسی لمحے راشد کو کسی بزرگ کی آواز سنائی دی، تعویذ نکالو بیٹا، تعویذ نکالو۔ یہ بابا نذیر کی آواز تھی۔ راشد نے جلدی سے جیب سے تعویذ نکالا، اور جیسے ہی تعویذ باہر آیا، عورت کی چیخ سنائی دی اور وہ دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ راشد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو راشد بابا نذیر کے گھر میں تھا۔ بابا نذیر اس کے پاس بیٹھے تھے۔ بابا نے کہا، میں جانتا تھا تم ضدی ہو، اس لیے تمہارے پیچھے گیا۔ تم نے جو دیکھا وہ حقیقت تھی۔ وہ عورت کوئی انسان نہیں بلکہ ایک عذاب ہے جو اس گاؤں پر پرانے وقتوں سے لگا ہوا ہے۔
मगर उसका राज, वो राज अभी तुम नहीं जानते। राशिद ने हल्की आवाज में पूछा, बाबा ये सब क्या है? बाबा ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन याद रखो, सच जानने वाला अक्सर लूट कर नहीं आता। राशिद की आंखों में जिद थी। इसने कहा, बाबा मुझे पूरा सच जाना है। बाबा नजीर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तो सुनो, यह किस्सा बहुत पुराना है। बाबा नजीर की बातों में एक अजीब सी गहराई थी। इसकी आवाज में एक ऐसा दर्द छुपा था जैसे इसने वो सब अपनी आंखों से देखा हो। राशिद खामोशी से बैठा सुनता रहा और बाबा नजीर ने आहिस्ता से अपनी कहानी शुरू की। ये औरत जो तुमने देखी ये आज की नहीं बल्कि 200 साल पुरानी है। इसे लोग बीबी जोहरा उनके नाम से जानते थे। जोहरा बीबी गांव की सबसे हुसैन, सबसे नेक दिल लड़की थी। इसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती। वो हर वक्त पर्दे में रहती, कुरान पढ़ती, दुआ करती और गांव की औरतों को सिखाती थी। मगर उसकी खूबसूरती पर एक शरीर जिन की नजर पड़ गई थी। राशिद चौंक गया। जिन? बाबा नजीर ने सर हिलाया। हां, इस जिन का नाम था शम्स अलैन। वो जिन नहीं बल्कि एक जादूगर था जो जिन्नात की ताकत रखता था। इसने जोहरा बीबी को हासिल करने के लिए काला इल्म सीखा, लेकिन जोहरा बीबी एक पारसा खातून थी, इसने इनकार कर दिया। शम्स अलैन ने इंतकाम में काला जादू किया और जोहरा बीबी पर एक लानत डाल दी। राशिद की सांस रुक गई। कैसी लानत? बाबा नजीर ने जमीन पर लकीर खींची और कहा, शम्स अलैन ने जोहरा बीबी को यूं बद्दुआ दी कि इसकी रूह कभी सुकून न पाए और वो हर रात अपनी शक्ल बदलती रहे। कभी मासूम बच्ची, कभी बुढ़ी औरत, कभी जवान हसीना, मगर ना वो मर सके ना जी सके। बस रात को जागे, दिन को सोए। और यूं जोहरा बीबी एक ना खत्म होने वाली सजा में फंस गई। राशिद की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बाबा अगर वो औरत इतनी मासूम थी तो हमें इसे बचाना चाहिए। बाबा नजीर ने मुस्करा कर कहा, यही बात तुम्हारे दादा ने भी कही थी। तुम्हारे दादा भी बहुत बहादुर इंसान थे। इन्होंने भी जोहरा बीबी को आजाद करने की कोशिश की थी, मगर इन्होंने हमें एक बात बताई थी जो आज तक मेरे दिल में कैद है। राशिद ने बेचैनी से पूछा, कौन सी बात बाबा? बाबा नजीर ने सरगोशी की, जब तक जोहरा बीबी का असल चेहरा कोई ना पहचान ले तब तक वो आजाद नहीं हो सकती, और उसका असल चेहरा देखने वाला खुद भी जिंदगी भर के लिए कैद हो जाता है। राशिद हैरान रह गया। लेकिन बाबा फिर हमें क्या करना होगा? बाबा नजीर ने गहरी सांस ली। तुम्हें गांव के इस हिस्से में जाना होगा जहां शम्स अलैन का कला है। कला अब खंडर बन चुका है, मगर उसके तहखाने में जोहरा बीबी की हकीकत छपी है। मगर याद रखो, वहां जाना आसान नहीं। तुम्हें पहले काले दरख्तों के जंगल को पार करना होगा। इस जंगल में रास्ता बताने वाला एक ही शख्स है, और वो है फकीर गुलाम दीन। राशिद ने फैसला कर लिया, बाबा मैं फकीर गुलाम दीन के पास जाऊंगा। मुझे ये राज जाना है। बाबा नजीर ने राशिद का कंधा थामा। जिस दिन तुम तैयार हो जाओ मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें फकीर गुलाम दीन का पता बता दूंगा। मगर याद रखो, सच की कीमत बहुत बड़ी होती है। राशिद ने कहा, बाबा अगर सच न जानो तो ये बेचैनी उम्र भर रह जाएगी। मैं जरूर जाऊंगा। बाबा नजीर ने मुस्करा कर कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारा हौसला देखकर खुशी हुई, लेकिन पहले तुम कुछ दिन आराम करो और दुआ करो कि तुम्हें हिम्मत मिले। फिर मैं तुम्हें वो तावीज भी दूंगा जो तुम्हारे दादा के पास था, वही तावीज जो काले जादू से तुम्हारी हिफाजत करेगा। राशिद ने सर हिलाया। इसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ तजस्सुस था। चंद दिन गुजर गए। राशिद अब भी बाबा नजीर की बातों में खोया रहता था। इसके दिल में एक अहद था कि वो इस राज तक जरूर पहुंचेगा। आखिरकार एक दिन इसने बाबा नजीर के पास जाकर कहा, बाबा मैं तैयार हूं, मुझे फकीर गुलाम दीन का रास्ता बता दीजिए। बाबा नजीर ने सर हिलाया और कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक चमकदार पुराना सा तावीज निकाला। ये तावीज तुम्हारे दादा का है।
इसे हमेशा अपने सीने के करीब रखना, क्योंकि काला इल्म, झूठा जादू और जिन्नात तुम्हें नुकसान नहीं दे सकेंगे जब तक ये तुम्हारे साथ है। बाबा नजीर ने बताया कि फकीर गुलाम दीन गांव से बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास रहता था। वो एक अजीब शख्स था, न किसी से बात करता था न कभी हंसता था। लोग कहते थे कि इसकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं जो हम नहीं देख सकते। राशिद ने तावीज गिले में डाला और दिन के उजाले में ही सफर पर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में दरख्तों की छांव थी, चिड़ियां चहक रही थीं, मगर कब्रिस्तान के करीब पहुंचते ही फिजा बदल गई। ठंडी हवा ने राशिद को कपकपा दिया। हर तरफ सन्नाटा था। तभी राशिद को एक पुरानी कब्र के पास बैठा बोसीदा कपड़ों में लिपटा एक शख्स नजर आया। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बंद थीं, जैसे सो रहा हो, मगर उसका चेहरा पुरसुकून था। राशिद ने हिम्मत की और आहिस्ता कहा, फकीर गुलाम दीन। अचानक वो फकीर बोल पड़ा बगैर आंखें खोले, आ गया ताब, जिसे सच की तलब है। राशिद हैरान रह गया। फकीर गुलाम दीन ने आहिस्ता आंखें खोली। इसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे, जैसे कई रातों की नींद उसकी आंखों में कैद हो। सच संभालने की ताकत है तुझ में लड़के, राशिद ने कहा। मुझे ज़ोहरा बीबी के राज तक पहुंचना है, काले दरख्तों का जंगल पार करना है। फकीर गुलाम दीन हंसा नहीं, बस कहने लगा, वो जंगल जहां दरख्त बोलते हैं और राहें बदल जाती हैं, वहां वही जा सकता है जिसके दिल में खौफ ना हो। लेकिन एक बात याद रख, रास्ता सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपने अंदर का सच लेकर जाते हैं। जो झूठा हो वहां रास्ता भटक जाता है। राशिद ने कहा, मेरे दिल में कोई झूठ नहीं, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। फकीर ने मिट्टी से एक छड़ी उठाई, जमीन पर नक्श बनाया, एक दायरा और उसके बीच में एक सितारा। ये निशान जंगल के दरवाजे पर होगा। इस निशान पर अपना तावीज रखना, रास्ता खिल जाएगा। लेकिन खबरदार, अंदर तुम्हें ऐसे साए मिलेंगे जो तुम्हारे दिल का खौफ पड़ सकते हैं। राशिद ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और कब्रिस्तान से निकल पड़ा। कुछ ही फासले पर काले दरख्तों का जंगल आ गया। दरख्त इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन पर ना पहुंचती। अजीब सी सीटी जैसी हुआ चलती थी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। राशिद ने गौर से जमीन देखी। थोड़ी देर बाद इसे वही दायरा और सितारे का निशान मिल गया। इसने तावीज उतारा और निशान पर रखा। जमीन थरथराने लगी। दरख्तों में से एक रास्ता खुद ब खुद बन गया, जैसे दरख्त पीछे हिट गए हों। राशिद ने बिस्म अल्लाह पढ़ी और अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ अंधेरा था, मगर राशिद के दिल में हौसला था। तभी इसके कानों में आवाज आई, वापस जा, ये तुम्हारा रास्ता नहीं। राशिद राका नहीं, कदम बढ़ाता रहा। अचानक सामने एक साया आया। इसकी शक्ल बिल्कुल राशिद जैसी थी। मैं तुम्हारा डर हूं, तुम्हारे अंदर छुपा खौफ। तुम सच बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, वापस जाओ। राशिद ने आंखें बंद की, दिल ही दिल में कुरान की आयत पढ़े और जोर से कहा, मेरा दिल सच्चा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसी वक्त साया चीख मार कर गायब हो गया। रास्ता मजीद खिल गया। कुछ दूर चलने के बाद राशिद एक साफ मैदान में पहुंचा, जहां एक छोटा सा कच्चा कला था, टूटा फूटा, मगर उसके दरवाजे पर ज़ोहरा बीबी की तस्वीर बनी हुई थी। अचानक फकीर गुलाम दीन की आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे हुआ के साथ, ये कला शम्स अलैन का है, मगर अंदर वो राज है जो ज़ोहरा बीबी को आजाद कर सकता है। अंदर कदम रखने से पहले तैयार हो जा, वरना हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। राशिद ने गहरी सांस ली, तावीज को मजबूती से थामा और कले के दरवाजे की तरफ बढ़ा। राशिद ने कले के बोसीदा दरवाजे को धीरे से धकेला। दरवाजा एक भारी सी आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था और हवा में बासी पिन की महक थी, जैसे कई सदियों से यहां कोई ना आया हो। जैसे ही राशिद ने कदम अंदर रखा, तावीज ने हल्की सी गर्मी देना शुरू कर दी, जैसे कोई ताकत जाग उठी हो। कले के अंदर दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श ओ निगार बने थे। कहीं आंखों की तस्वीरें, कहीं अजीब तहरीरें जो शायद किसी कदीम ज़बान में थीं। राशिद आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ता रहा। तभी अचानक एक गूंजदार आवाज पूरे कले में गूंजी, कौन है जो मेरे इल्म की हुदूद में दाखिल हुआ?
राशिद ने नजरें दौड़ाईं मगर कोई नजर न आया। तब अचानक सामने की दीवार पर एक शोला भड़का और उसके अंदर एक साया जाहिर हुआ, लंबा दुबला पतला, आंखें अंगारों जैसी, हाथ में लंबा असा। यही था शम्स अलैन। क्या तुम जानते हो लड़के कि तुम कहाँ आ गए हो? ये वो जगह है जहां वक्त भी थम जाता है और सच्चाई के तालिब हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। राशिद ने हौसले के साथ कहा, मैं ज़ोहरा बीबी के राज को जानने आया हूं। मैं जानता हूं तुमने इस पर जुल्म किया। शम्स अलैन के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। जुल्म? ये तो मेरे इल्म का कमाल है। ज़ोहरा बीबी का हसन, इसकी पारसाई, सब मेरे इल्म के आगे बेबस थे। मगर इसने इनकार किया, इसलिए मैंने इसे कैद कर दिया। राशिद ने कहा, लेकिन इसकी सजा कब खत्म होगी? शम्स अलैन ने तंजिया हंसी में कहा, जब तक कोई इसका असल चेहरा पहचान ना ले। मगर सच तो यह है कि इसका असल चेहरा इसकी आंखों में छुपा है और उसकी आंखों में देखने वाला हमेशा के लिए पागल हो जाता है। राशिद चुप हो गया। शम्स अलैन बोला, लेकिन तुम्हें उन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम यहां से वापस नहीं जाओगे। ये कहते ही शम्स अलैन ने अपना असा जमीन पर मारा और जमीन में दरारें पड़ गईं। जमीन से काले धुआं के बादल उठने लगे और साए जैसी मखलूक ने राशिद को घेर लिया। राशिद ने तावीज को मजबूती से पकड़ा और दिल ही दिल में सूरा सूए की आयत पढ़ने लगा। तावीज ने रोशनी देना शुरू कर दी और साए एक एक करके चीख मार कर खत्म होने लगे। शम्स अलैन गुस्से में चलाया, ये मुमकिन नहीं, तुम्हारे पास ये ताकत कहां से आई? राशिद ने जोर से कहा, ये मेरे दादा की दी हुई ताकत है जो हक के साथ था। शम्स अलैन ने जमीन पर हाथ फेरा और एक जादुई दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक शीशे का ताबूत रखा था जिसके अंदर ज़ोहरा बीबी लेटी थी। इसका चेहरा शफाफ, मासूम और सुकून में था मगर आंखें बंद थीं। शम्स अलैन ने कहा, यही है तुम्हारा सच, मगर तुम अगर उसकी आंखों में देखोगे तो पागल हो जाओगे। तो फैसला कर लो, देखोगे या वापस चले जाओगे? राशिद ने कहा, मैं सच के लिए हर कीमत देने को तैयार हूं। राशिद ने ताबूत की तरफ कदम बढ़ाया। जूं-जूं वो करीब जा रहा था, इसे अपने अर्द गिर्द सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, मत देखो, मत देखो, वरना खो जाओगे। मगर राशिद ने आंखें बंद करके दिल में एक दुआ पढ़ी और ताबूत के करीब पहुंचकर आहिस्ता से ज़ोहरा बीबी की आंखों को छुआ। उसी वक्त ताबूत से रोशनी फूट पड़ी। ज़ोहरा बीबी की आंखें खिल गईं। उनकी आंखों में न कोई जादू था न धोखा, सिर्फ एक सवाल, एक दर्द था। राशिद ने कहा, बीबी, मैं सच जाने आया हूं, बताइए कि आप पर यह क्या बीती? ज़ोहरा बीबी की आंखों से आंसू बह निकले। इन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मैं बेकसूर थी। शम्स अलैन ने मेरे इनकार पर मुझे कैद किया, मगर अब तुमने मेरे चेहरे को पहचान लिया। तुम सच्चे थे, तुमने मेरा असल रूप देख लिया, इसलिए तुमने मुझे आजाद कर दिया। रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। शम्स अलैन की चीख सुनाई दी, नहीं, ये मुमकिन नहीं। फिर अचानक शम्स अलैन के जिस्म में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। ज़ोहरा बीबी ने राशिद की तरफ देखा, बेटा, तुमने मुझे निजात दी, मगर अभी एक काम बाकी है। मेरी कब्र गांव के पुराने दरख्त के नीचे है। वहां जाकर मेरा नाम लेकर फातिहा पढ़ना ताकि मेरी रूह हमेशा के लिए आजाद हो जाए। ये कहकर ज़ोहरा बीबी की रूह शफाफ रोशनी में बदल गई और कला हिलने लगा, जैसे हर तरफ रोशनी फैल गई हो। राशिद को लगा कि वो अलिफाड़ने लगा हो और अचानक वो जंगल के बाहर खड़ा था। इसकी मुट्ठी में तावीज अब भी था मगर वो गर्म नहीं था, सब खत्म हो चुका था। राशिद ने शुक्र अदा किया मगर दिल में जानता था कि अभी सफर बाकी है। इसे अब ज़ोहरा बीबी की कब्र तलाश करनी थी ताकि वो इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सके। रात की चांदनी अब दम तोड़ चुकी थी और पूरा गांव खामोश था। राशिद अपने कदम रखकर चलता हुआ पुराने बलूत के दरख्त की तरफ गया जहां ज़ोहरा बीबी की कब्र थी, वहीं जहां बीबी ने अपनी रूह की आजादी के लिए फातिहा मांगा था। कब्र की तलाश।
راشد نے چراغ جلایا اور بلوط کے درخت کے پہلو میں کھدائی شروع کی۔ زمین نرم تھی جیسے اس میں کسی کی ہمت لینے والی ٹھہروٹ نہ ہو۔ چند دیر تلاش کے بعد وہ ایک شیشہ نما پتھر جھیلتا ہوا نیچے دیکھا، وہی تابوت جیسے پتھر تھا۔ راشد نے ہاتھ لگایا، دل دھڑک رہا تھا اور آہستہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے اللہ نورا السماوات پڑھا ہوا میں روشنی کا جھمکا ہوا مٹی کا جشن سا پھیل گیا۔ ایک خفیہ راز۔ اسی لمحے زمین ہلکی سی لرز گئی اور قبر کے نیچے سے ایک صندوق نکلا۔ صندوق پر زہرا بی بی اور شمس العین کے نشان کندہ تھے۔ راشد نے اسے کھولا تو اندر سے ایک خط ملا جو زہرا بی بی نے خود لکھا تھا۔ راشد، اگر یہ خط تم تک پہنچا ہے تو تم وہی ہو جو میرے خاندان میں آخری سچا ہے۔ میرے دادا نے شمس العین سے اس جادو کے خلاف تعویذ بنایا تھا اور وہ تعویذ اب تمہارے پاس پہنچا ہے۔ شمس العین نے ہمارا خاندان کبھی نہیں چھوڑا۔ اگر یہ طاقت صحیح ہاتھ میں ہو تو وہ جادو ہمیشہ کے لیے فنا ہو سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اس پوری طاقت سے حق کے راستے پر چلو اور اس تعویذ کو اپنی آنے والی نسلوں میں محفوظ رکھو۔ راشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرا بی بی نے نہ صرف اپنی روح آزاد کی بلکہ رازداری کے اس جھرمٹ میں اسے اپنے خاندان کا وارث بھی بنایا۔ مہر و روایات۔ راشد نے تعویذ کے ساتھ ساتھ اس صندوق کو بھی محفوظ کر لیا۔ پھر گورنر کی طرح نہ بلکہ سلیم اور تحمل سے وہ قبر کو دوبارہ مٹی لگا کر دفن کر دیتا ہے۔ اس قبر کے سر پر وہ تابوت نما پتھر آتر جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں یہ قبر عام ہے۔ اگلی صبح راشد گاؤں والوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے تمام کہانی سنائی، بی بی زہرا کی معصومیت، شمس العین کی بے رحم طاقت اور اپنی ہمت کی طاقت۔ جب اس نے وہ تعویذ ان کے سامنے دکھایا تو چند بوڑھے بازرگ آنکھیں نم ہو گئیں اور بچے حیرت سے دم بخود تھے۔ انجام اور سبق۔ گونجتی قصوں کی طرح زہرا بی بی کی روح آزاد ہو گئی۔ 5 ماہانہ کی مسلسل شبکرمی اور فاتحہ کے بعد لوگ محسوس کرنے لگے کہ گاؤں کی فضا میں ہلکی خوشبو سی ہے، وہ نرم ہو گئی ہے اور قدیم خوف چھٹنے لگا ہے۔ راشد نے تعویذ اور صندوق اپنی نانی کے گھر دفن کروا دیا تاکہ آئندہ نسلیں جانیں کہ انصاف کے لیے حوصلہ اور سچ کا ہاتھ ہمیشہ طاقت رکھتا ہے۔